नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। कोर्ट ने आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की रिमांड को आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय को 6 दिन रिमांड की मंजूरी मिल गई है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने होम फूड की डिमांड को नकारा है। मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू जुड़ चुके हैं। जी महेश, क्या कुछ अपडेट है ईडी की खबर को लेके? देखिए, ईडी ने लगातार कार्रवाई के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें, फिलहाल छत्तीसगढ़ में आईएएस समीर बिश्नोई और 2 कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, ये तीनों को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद फिलहाल इनको 6 दिन का रिमांड पर भेज दिया है। जी, तो इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, इस मामले पर अभी फिलहाल 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से पहले इनको फिर से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जी महेश, कोर्ट में ले जाने से पहले उन्हें अस्पताल लेके जाया गया था? नहीं जी, ऐसा कोई अपडेट नहीं आई है। अस्पताल लेकर नहीं गया था, सीधे उनको रायपुर कोर्ट में लेके आया गया और यहाँ पेश किया गया। यहाँ लगातार बहसबाजी होने के बाद उनको फिर से 6 दिन का रिमांड मिला और 27 अक्टूबर को उसको दोपहर में फिर से पेश होने को कहा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू। और आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में रायपुर की अदालत ने 8 दिन की रिमांड मंजूर की थी। हालांकि ईडी की टीम ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। इन 8 दिनों में ईडी को कई तरह के सबूत मिले। इसमें कोल अवैध वसूली के भी सबूत शामिल है। एडवोकेट विजय अग्रवाल ने कहा है कि पिछली बार ईडी ने फॉल्स एप्लीकेशन पेश किए थे। ईडी के रिमांड की मांग गलत है। वहीं उन्होंने रिमांड की प्रोसेस को भी गलत बताया है। वहीं बताया जा रहा है कि एडवोकेट विजय अग्रवाल ने सुनील अग्रवाल को घर के बने भोजन देने की अनुमति मांगी है। यह भी कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ईडी ने वकीलों की उपस्थिति का विरोध किया है। 6 days police custody remand, so we have objected to the same, and today we could bring to the notice of the court that last time the remand application was false. It was stated that the FIR is registered under various offences, which included the scheduled offence or a predicate offence under section 384 IPC. Today the other side agreed in the court that that was a false statement made in the court. Today now they are coming to say that 384 was added later on. So our stand from the day one is very clear that our clients are in illegal custody, because for a PMLA offence to be there has to be a scheduled offence. Under section 3, they say that for a money laundering offence has to be there has to be proceeds of crime under section 21U. 21U says that for a proceeds of crime to be there has to be a scheduled offence, and the offences in which the FIR is registered, none of the offences are scheduled offence. And last time a false statement was made in the court by the other side that there is a 384 FIR registered in the 384. Today we showed the FIR in the court, so there is no 384. So whole proceeding of the ED is false, and our client deserved to be released. ED also objected that the court last time on our request had permitted that the lawyer should be present at the time of the interrogation, so ED was objecting to the same. But today we have also requested that the relatives should be permitted to meet the accused person in custody, and the home food should also be permitted. I have shown the number of cases from the special judges of Delhi where such orders are always passed, and also from the special judges of Mumbai. So court will consider the same. The order has been reserved. What is the base of extended remand from ED today? So that is the same old story. They say that we want to interrogate, we want to arrest Suryakant Tiwari. So we are searching for him. So because at the residence and office of my client, searches have already been made. He has been interrogated for 8 days. So 6 days more is unjustified. So court is to decide. हमें 6 दिनों का रिमांड मिला है। 27/10/21 की आगामी तिथि है तीनों अभियुक्त की। सर, जज साहब ने कुछ आपको शर्तें रखी क्या? शाम को कुछ बोल रहे थे वो 5? हाँ, वो शर्तों को लेकर के उनके परिजन भी चाहें तो शाम में 45 मिनट के लिए मिल सकते हैं। और सर, वकील सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इस बार आप? नहीं, वकील नहीं सुनेंगे, वकील सुनेंगे नहीं, वकील देख सकते हैं, यही डायरेक्शन। और होम फूड को लेकर भी नहीं, और कोई डायरेक्शन। सर मुझे बता दीजिए ना कि क्या मिला, चिप्स से क्या मिला सर? इट्स ऑल मैटर ऑफ वेरी कॉन्फिडेंशियल, वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट। और ये अच्छा, तिवारी का तो बता दीजिए, जमीनें मिली है बेतरा में और महासमुंद है, कुछ उनके साथ मिली हुई है। सर, ये एक जो आर्बिट्रेशन करना चाह रहे हैं, कौन से अग्रवाल के साथ? ऋषभ अग्रवाल या कुछ? कोई आर्बिट्रेशन का कोई इसमें कोई भी बहस में कोई आर्बिट्रेशन की कोई ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू।
ईडी से जुड़ी तमाम अपडेट्स न्यूज़ प्लस 21 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।